Welcome to Online Chanakya Academy. Standard 12th Commerce English Medium Subject Statistics Chapter number 2 Linear Correlation. Example number 11. For 6 different cities of Gujarat state, the approximate figure regarding their density of population per square kilometer and the death rate per thousand are given below. चलो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट मींस वैल्यू ऑफ आर. क्लियर? सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे पूरा. चलो टेबल में x और y की वैल्यू पुट करेंगे और दोनों का टोटल सिग्मा x एंड सिग्मा y. सिग्मा x और y के बेस पे से जैसे लास्ट सब क्वेश्चन में हमने किया उसी तरह x बार एंड y बार. चलो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n मीन्स x बार इज इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाय 6. So x bar is equal to 450. Any confusion? Y bar sigma y upon n. So y bar is equal to 68 divided by 6. So y bar is equal to 11.33. चलो यहाँ पर y bar इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल है, पॉइंट में है, तो uv वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. और already value of x variable is large, so here we follow equation r is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v divided by under root n sigma u square minus sigma u all square into under root n sigma v square minus sigma v all square. चलो सबसे पहले तो कैलकुलेशन करेंगे सब. जैसे सबसे पहले भी कैलकुलेट करेंगे u x माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100. 500 ही क्यों डिडक्ट किया? कोई कंपलसरी रूल नहीं, कोई भी नंबर आप डिडक्ट कर सकते हैं डिजिट. हमारा पर्पस है जो x की वैल्यू उसको स्मॉल बनाना है. और डिवाइड 100 क्यों लिया? देखो x में जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स आर 00, so easily divided with 100. That's why here we divide with 100. So 200 minus 500 divided by 100 minus 3. 500 minus 500 0. 400 minus 500 divided by 100 minus 1. 700 minus 500 divided by 100 is equal to 2. 600 minus 500 divided by 100 1. 300 minus 500 divided by 100, that is minus 2, and total, which is sigma u. Here sigma u is equal to minus 3. चलो अब v की कैलकुलेशन करेंगे. y माइनस ओनली 12. यहाँ पर डिवाइड पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप 10 से डिवाइड करो या तो 5 से डिवाइड करो या कोई भी अलग इंटीजर से डिवाइड करोगे तो v जो है वो पॉइंट में आ जाएगा. सो हियर वी डिडक्ट ओनली 12. क्लियर? So 10 minus 12 minus 2, 12 minus 12 0, 10 minus 12 minus 2, 15 minus 12 3, 9 minus 12 minus 3, 12 minus 12 that is 0. Okay, और उसका टोटल सिग्मा v which is minus 4. Here sigma v is minus 4. Now u and v, u और v का मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? चलो minus 3 into minus 2 6, 0 into 0 0, minus 1 into minus 2, that is, so minus 1 into minus 2, that is 2. 2 into 3 6, 1 into minus 3 minus 3, minus 2 into 0 0, and total sigma uv is equal to 11. Any confusion? Now u square यानी u की जो कॉलम है उसका स्क्वायर, minus 3 square 9, 0 square 0, minus 1 square 1, 2 square 4, 1 square 1, minus 2 square 4, and sigma u square is equal to 19.
Now v square minus 2 square 4, 0 square 0, minus 2 square 4, 3 square 9, minus 3 square 9, 0 square 0. Total sigma v square is equal to 26. चलो पूरा टेबल प्रिपेयर हो गया. अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे. जैसे r इज इक्वल टू n की जगह पुट करेंगे 6 और सिग्मा uv में 11 माइनस सिग्मा u कितना है -3, सिग्मा v कितना है -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n तो ऑलरेडी 6 है. सिग्मा u स्क्वायर कितना है 19 माइनस सिग्मा u -3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 6. सिग्मा v स्क्वायर कितना है 26 माइनस सिग्मा v है हमारे पास -4 स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप r इज इक्वल टू 66 माइनस 12 ना तो कैलकुलेशन आएगी ना. गुड. डिवाइडेड बाय अंडर रूट 114 माइनस 9 इंटू अंडर रूट 156 माइनस 16. नेक्स्ट स्टेप r इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 105 इंटू अंडर रूट 140. नेक्स्ट स्टेप r is equal to 54 divided by 10.247 into 11.832. So r is equal to 54 divided by 121 into 24. So r is equal to 0.44 which is not close to 1. चलो पूरा सम प्रॉपरली रिफर कर लो. कुछ भी कंफ्यूजन हो सीधा कॉल कीजिए. ओके Example number 12. In order to study the relation between the sales and the profit for truck tire manufacturing companies, the following information is obtained for the last year. Find the correlation coefficient between the sales and the profit from it. सबसे पहले टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें x एंड y की वैल्यू पुट करनी है. जैसे यहाँ पर x ऑलरेडी पॉइंट में है क्या, तो हम यहाँ पर यूवी वाली मेथड ही यूज करेंगे. चलो सबसे पहले तो x बार एंड y बार फाइंड कर लेंगे. दोनों का टोटल करो. सिग्मा x 18, सिग्मा y 50,500. सो x बार 18 डिवाइडेड बाय 9 2, y बार सिग्मा y अपॉन n, y बार इज इक्वल टू 50,500 डिवाइडेड बाय 9. सो y बार इज इक्वल टू 5611.11. ऑलरेडी y बार पॉइंट में है. क्लियर. y की वैल्यू ऑलरेडी लार्ज है, x ऑलरेडी पॉइंट में है. सो हियर वी यूज द फॉर्मूला r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर. चलो पहले तो ये इक्वेशन पता चली, वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी. चलो टेबल में सब वैल्यू फाइंड करेंगे. चलो सबसे पहले u, यहाँ पर न्यू टॉपिक है, ध्यान से समझना. जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि x में से कोई भी एज्यूमिंग माइनस करके कोई भी इंटीजर से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी x पॉइंट में है. हमारा मेन पर्पस है पॉइंट को यहाँ से हटाना. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर डिडक्ट करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अल्टीमेट पॉइंट विल बी रिमूव. क्लियर. चलो कैसे, 1.6 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 4, 2.2 माइनस 2 इंटू 10 2, 1.9 माइनस 2 इंटू 10
minus 1, 2 minus 2 0, 2.3 minus 2 into 10 3, 1.7 minus 2 into 10 minus 3, 2.4 minus 2 into 10 4, 1.8 minus 2 into 10 minus 2, 2.1 minus 2 into 10 1. So sigma u is equal to 0. सिग्मा u की वैल्यू कितनी है 0. नाउ v. अब v में कोई भी वैल्यू, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होना है इसमें से हमें डिडक्ट क्या करना है, तो जनरली कोई भी नंबर डिडक्ट कर सकते हैं. अगर आपको माइनस से प्रॉब्लम हो रहा हो तो क्या करना है, y में जो स्मॉल नंबर हो ना वो सब में से डिडक्ट करो, या तो आपका जो मीन है उसके जो नियरेस्ट इंटीजर आता हो वो डिडक्ट करो. जैसे हमारा मीन है 5611, सो हम इसीलिए डिडक्ट कर रहे हैं 5600. ये कोई रूल नहीं है, आप कोई भी नंबर डिडक्ट कर सकते हैं. क्लियर? ये इजी के लिए मैंने बोला कि नियरेस्ट टू मीन, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है. क्लियर? आप कोई भी नंबर डिडक्ट कर सकते हैं. जैसे मुझे 5000 डिडक्ट करना हो तो मैं 5000 कर सकता हूँ, 4000 कर सकता हूँ, 4500, कुछ भी. अभी हम ले रहे हैं 5600 और लास्ट में 2 0 है, सो डिवाइडेड विथ 100. 4200 माइनस 5600 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 14, 5500 माइनस 5600 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, 6000 minus 5600 divided by 100 4, 6200 minus 5600 divided by 100 6, 6100 minus 5600 divided by 100 5, 4900 minus 5600 divided by 100 minus 7, 5900 minus 5600 divided by 100 3, 5000 minus 5600 divided by 100 minus 6, 6700 minus 5600 divided by 100 11. So total sigma v is equal to 1. दोनों का मल्टीप्लाई विच इज uv, यानी माइनस 4 इंटू माइनस 14 56, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, 0 into 6 0, 3 into 5 15, minus 3 into minus 7 21, 4 into 3 12, minus 2 into minus 6 12, 1 into 11 11, and the total sigma uv is equal to 1 to 1. Now u square, minus 4 square 16, 2 square 4, minus 1 square 1, 0 square 0, 3 square 9, minus 3 square 9, 4 square 16, minus 2 square 4, 1 square 1. So sigma u square is equal to 60. Now v square, 14 square 196, minus 1 square 1, 4 square 16, 6 square 36, 5 square 25, minus 7 square 49, 3 square 9, minus 6 square 36, 11 square 121, and total sigma v square is equal to 489. Any confusion? वैल्यू पुट करो इक्वेशन में, r is equal to 9, सिग्मा uv कितना है 121 माइनस सिग्मा u 0 सिग्मा v 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, n है 9, सिग्मा u स्क्वायर है 60, सिग्मा u 0 इंटू अंडर रूट 9, सिग्मा v स्क्वायर है 489 माइनस 1 स्क्वायर, सो 1089 माइनस 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 540 इंटू 0 इंटू 4401 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 0 यहाँ पर माइनस 1. r इज इक्वल टू 1089 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 540 इंटू अंडर रूट 4400, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी r इज इक्वल टू 1089 डिवाइडेड बाय 23.238 इंटू 66.332. r is equal to 1089 divided by 1541.42, so r is equal to 0.71, which is slightly far from 1, nearest to 1.